Very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shiva Group of Institutions. We welcome you all in the online classes. Student, this is your English language period, and as we know that we are continuing your second term course. So from where we have started our second term course, we have started with chapter number 6, adjectives. As we have already completed the chapters in your last audio clips. So today we will revise or recall the explained chapters. So here, first of all, we recall the chapter number 6, adjective. Okay? Adjectives. What are adjectives? Adjectives are those words which describe about noun. जो words noun को describe करते हैं कि noun कैसी है, उसको हम adjectives कहते हैं, and they are also known as describing words. Okay, here are some examples. Rita is a pretty girl. So Rita को कौन describe कर रहा है कि वो pretty है? Pretty. This word. Okay. Burj Khalifa is a tall building. Burj Khalifa कैसी है? Tall है. Tall word is describing Burj Khalifa. Okay. So all this about is adjectives. जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं. Just like that, we say in English the words that describe noun is called adjectives. Okay, and they are also known as describing words. So we have completed this chapter. Now come to the chapter number 7. Your chapter number 7 is comparison, and we have already studied about this chapter 2 in your audio clips. So today we will record the chapter number 7, 2, comparison. Okay? Comparison means किसी दो चीजों के बीच में हम कंपेयर करते हैं कि वो चीज दूसरी चीज से कैसे डिफरेंट है, इसे हम कंपैरिजन करते हैं. ओके, जस्ट लाइक watermelon is bigger than mango. Okay, means watermelon is bigger than mango. So here is a comparison between watermelon and mango. कि watermelon mango से बड़ा है. Okay, boy is taller than girl. तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बॉय और गर्ल के बीच में कि बॉय गर्ल से बड़ा है. और ये जो कंपैरिजन होता है ये हम हमेशा एडजेक्टिव्स के थ्रू करते हैं. ओके, एडजेक्टिव्स के थ्रू ही हम करते हैं. जैसे बिग एंड टॉल आर बोथ आर एडजेक्टिव्स. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट डिग्री इज पॉजिटिव डिग्री. ये डिग्री हमारे नॉर्मल एडजेक्टिव्स वर्ड होते हैं जिनमें कुछ भी हम ऐड नहीं करते हैं, ना कि ये नॉर्मल कंपेयर करते हैं. ओके, नॉर्मल वे में कंपेयर करते हैं. जो कुछ भी कंपैरिजन नहीं दिखाता है या फिर नॉर्मल वे में लेके जाके इन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, मींस पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. ओके, जो एडजेक्टिव्स हम नॉर्मल दिखाते हैं उन्हें हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. नेक्स्ट वन इज comparative degree. Comparative degree. Okay, so this one is the second form of degree. First one is positive, normal form, doesn't show any comparison. Next one, comparative degree, show comparison by adding er with the adjective. जब हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ er को ऐड कर देते हैं और जो ये कंपैरिजन दिखाता है er एडेड वर्ड, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. जस्ट लाइक फास्टर, he ran faster than a boy means Arohit. Okay, he ran faster than Rohit. He is taller than
Priya. Okay, he is smarter than this, whatever. जिसमें हम ये taller adjectives के साथ er ऐड करते हैं वो हमारी होती है comparative degree. Okay, and the third one is superlative degree. सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री होती है, ठीक है, कंपैरिजन की थर्ड फॉर्म होती है। इसमें हम एडजेक्टिव के साथ est ऐड करते हैं। ओके, जिस भी एडजेक्टिव के साथ हम est ऐड करते हैं तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, smartest. Okay, these are the superlative degree of the adjective. So there are three types of degree: positive, comparative, and superlative. On the basis of these degrees, we compare the things or the two persons. Okay, और comparative degree हमेशा दो लोगों के बीच में होती है और superlative degree हमेशा दो लोगों से ज़्यादा के बीच में होती है। So we have recalled the previous classes. So students, that's all for today. Thank you so much and have a great day. A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am teacher Kushila Group of Institutions. We are from you all in the online classes. The students, this is your English literature period, and as we know that we have started the second term course, and this one is your first chapter from your second term. So students, this chapter we have already completed in your audio classes. So this one is the record session of your this chapter, that what we have studied in the last audio classes. Okay. So we have completed the reading and explanation of this chapter. Fair Justice, chapter number 6. So you have to open your book at page number 35. Fair Justice. This chapter is all about the conversation and the drama between Akbar, Birbal, and 5 or 6 noblemen and a poor washerman. These are the characters of this drama: Akbar, Birbal, poor washerman, 5 or 6 noblemen. Akbar, the Emperor of India; Birbal, one of the 9 gems in the Akbar's court. So this drama is divided into some scenes. So let's know what is in the first scene. In the first scene, Akbar and Birbal are with their 5 or 6 noblemen moving around the bank of river Yamuna. Means in the cold night. Means ठंडी रात का मौसम था। अकबर बिरबल अपने नोबलमैन के साथ बैंक ऑफ रिवर यमुना पे घूम रहे थे। Then Akbar asks to the people that how cold the water of Yamuna is. Means यमुना का पानी कितना ठंडा है, icy water है और कितनी cold night है। अब हमें यहाँ से मतलब कि कोई कैसे यहाँ पे रह पाएगा। तो then people answer to the Akbar, why we are roaming here and there around the bank of river Yamuna? Can we move to the palace or court? Then Akbar replied, जब बीरबल ने कहा कि हाँ जब इतना ठंडा मौसम है तो हम लोग यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं, चलिए हम वापस चलते हैं अपने कोर्ट पे। Then Akbar decided to make an announcement and asked to the Birbal to make an announcement that the person who stayed for the whole night in this icy cold water of Yamuna river will be awarded with 1,000 gold coins. Means कि उन्होंने बीरबल से कहा कि मुझे अनाउंसमेंट करनी है कि जो भी इंसान इस आइसी कोल्ड वाटर में पूरी रात स्टे करेगा उसे मैं 1,000 बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स दूंगा। ओके, सो जो वहाँ पे नोबलमैन थे साथ में, दे आस्क्ड द बीरबल दैट इट इज इम्पॉसिबल, हाउ कैन अ पर्सन स्टे for a whole night in this icy cold water, and if someone take this challenge, he will be freezed in this cold water. बेचारा, उसका क्या होगा जो इस icy cold water में रहेगा, वो तो freeze हो जाएगा पूरी रात में। Okay? With this statement, the scene first ended, and the scene second is from the
Akbar's court. And in the scene second, a poor man enters the Akbar's court and asks to the Akbar that can you please give me the permission to take this challenge? एक poor caution man अकबर की कोर्ट पे एंटर करता है और तो राजा उससे पूछते हैं, मीन्स अकबर उससे पूछते हैं कि what happened, why are you here and तुमको यहाँ कौन सी चीज़ लेके आई है? Then poor man asks to the Akbar that if you give me permission, I have to accept this challenge to look after my family by winning this by winning the reward of 1000 gold coins कि अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहूँगा पूरी रात उस आइसी कोल्ड वाटर पे खड़े रहने की, ताकि मुझे वो प्राइस मिल सके और मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव करवा सकूँ। देन नोबल ने कहा कि तुम यू लुक सो वीक, हाउ कैन यू स्टे फॉर वन नाइट ऑन दैट आइसी कोल्ड वाटर ऑफ यमुना? एक नोबल ने कहा तुम तो बहुत कमजोर दिख रहे हो, तुम वहाँ पे कैसे खड़े हो पाओगे पूरी रात उस आइसी कोल्ड वाटर में? Then poor man, give me a chance. तो poor man ने कहा प्लीज मुझे एक चांस दो। Then Akbar asked to the Birbal, what do you say about it? कि बीरबल तुम क्या कहना चाहोगे इस बात में? Then बीरबल ने कहा कि yes, of course we can give a chance to him, कि हम एक चांस उनको दे सकते हैं। Then Akbar asked to the poor man, then okay fine, you will be there at 9 PM sharp at the bank of river यमुना। उन्होंने कहा कि तो मुझे ठीक है 9 बजे रात को यमुना के बैंक ऑफ रिवर में मिलना। Then poor man thanked the Akbar and moved away। उन्होंने अकबर को थैंक यू बोला और वहाँ से चले गए। Now here the scene second ended. Now come to the scene third. Again the court scene. The next day at the court again, poor man, Your Highness, I have won the challenge. Please give me the record of 1000 gold coins. तो poor man ने कहा कि मैंने चैलेंज जीत लिया है, आप मुझे आप मेरा रिवॉर्ड दे दीजिए 1000 गोल्ड कॉइन का। Then Akbar asked to the poor man, okay fine, but tell me first, how can you stay at that icy water for the whole night? तो राजा ने पूछा उस poor man से कि सब तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ तुमने पूरी रात आइसी कोल्ड वाटर में यमुना के पानी में कैसे बिताई? Then poor man ने कहा, Your Highness, there was a sparkling of light at the another bank of river Yamuna, and I was just imagining that sparkling giving me warmth for the whole night, and with this I have stayed for the whole night at that icy water of Yamuna। उसने बोला कि दूसरे किनारे पे एक घर पे एक दिया जल रहा था और उसी दिया को देखते हुए मैं इमेजिन कर रहा था कि ये दिया मुझे वार्मनेस प्रोवाइड कर रहा है, बस इसी वजह से मैंने पूरी रात उस आइसी वाटर में गुजार दी। अकबर, गो अवे, आई विल नॉट गिव यू एनी रिवॉर्ड और एनीथिंग, यू हैव चीटेड मी। तो राजा ने गुस्से से कहा कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा। मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी मीन नहीं मिलना चाहिए, कोई भी मीन्स नहीं होना चाहिए जिससे तुम्हें गर्मी मिले या फिर वार्मनेस प्रोवाइड हो, और तुमने तो मुझे धोखा दिया है, यू हैव बेट्रेड मी, यू चीटेड मी, तुमने चीट किया है। जब तुम्हें आइसी कोल्ड वाटर में रहना था तो तुमने वहाँ दिए की तरफ क्यों देखा? As we know that this one is the irony. So the Birbal watches all this silently, और बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। Okay, so here the scene third ends. Now come to the scene fourth. This one, scene fourth is all about the Birbal's house. Okay, so scene four, Akbar is sitting in a big chair with two good noblemen और also sitting across him। तो ये सीन है बीरबल के घर की, जहाँ पे अकबर एक बड़ी सी चेयर में बैठे थे अपने दो नोबलमैन के साथ। ओके, देन अकबर, बीरबल, व्हाई हैव यू इनवाइटेड अस फॉर डिनर? तो बीरबल, अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल तुमने हमें इनवाइट क्यों किया है? इज देयर समथिंग स्पेशल? तो बीरबल ने कहा, देयर इज नथिंग स्पेशल, आई हैव जस्ट इनवाइटेड एज अ नॉर्मल डे। बहुत दिन हो गए हमने साथ में डाइट में शेयर किया है, जिसकी वजह से मैं ये ऑनर चाहता था कि आप मेरे साथ बैठ के डिनर करें। ओके,
इसके बाद बीरबल वहाँ से उठ के किचन के गार्डन में चला जाता है। देन अकबर, आर यू डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर द डिनर जस्ट बिकॉज इट्स टेकिंग सो मच टाइम। तो अकबर ने पूछा बीरबल से, क्या तुम हमारे लिए कुछ स्पेशल बना रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें इतना टाइम लग रहा है खाना बनाने में? देन बीरबल, नो नो योर हाइनेस, इट्स जस्ट अ सिंपल मील बट इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम टू कुक। तो बीरबल ने बोला, नहीं 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 राजा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ, ये तो बस एक नॉर्मल सा मील है, बट हाँ ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है कुक पकने में। ओके, देन इसके बाद अकबर वहाँ से बीरबल वहाँ से बोल के कि अभी कुछ देर में आता हूँ, आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, वहाँ से चले जाते हैं। ओके, हियर सीन 4 एंड्स। नाउ कम टू द सीन 5। और जब वो बीरबल वहाँ से जा रहा होता है तो उसको अकबर वहाँ पे फॉलो करते हैं। देन अकबर, बीरबल, आई थिंक यू वांट अस टू डाई ऑफ हंगर। तो अकबर कहते हैं कि बीरबल, मुझे लग रहा है तुम ना हमें भूख से मार ही दोगे। देन बीरबल, व्हाई आर यू saying so, your highness, राजा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? Then अकबर, I don't think this meal will get cooked tonight. तो अकबर, ना मुझे नहीं लगता ये खाना आज के दिन में पक पाएगा। Then बीरबल, why do you think so? तो बीरबल ने बोला, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अकबर, the fire is too away from the pot. How will it get heat to cook? तो अकबर ने बोला, इतनी ऊपर तो तुमने पॉट रखा हुआ है और नीचे आग जलाई है, कैसे आग पहुंचेगी पॉट तक और ये कैसे पकेगा? Then बीरबल, sorry to say your highness, if a small light on the opposite bank of Yamuna can give the warmth to a poor man, then this food should be cooked soon. तो बीरबल ने बोला कि माफी चाहता हूँ मैं ये कहते हुए राजा, लेकिन अगर दूसरे किनारे पे छोटी सी लाइट जलती हुई किसी भी इंसान को जो आइसी वाटर पे खड़ा है, अगर उसको वो वार्मनेस या गर्मी प्रोवाइड कर सकता है तो ये खाना भी हिसाब से जरूर पक सकता है। देन अकबर को अपनी गलती का रियलाइज हुआ, यस आई वाज रॉन्ग विद द पुअर मैन, कि हाँ मैं गलत था उस पुअर मैन के साथ, मुझे उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। कॉलिंग टू द कोर्ट बाय द टुमारोज मॉर्निंग, और कल से तुम कोर्ट में बुलाओ, मैं आई विल रिवॉर्ड हिम विद 2000 गोल्ड कॉइंस। ऐसे तो प्राइस था, रिवॉर्ड था 1000 गोल्ड कॉइन का, लेकिन अब राजा ने डिसाइड किया कि वो उसे 2000 गोल्ड कॉइंस देंगे। देन बीरबल, थैंक यू योर हाइनेस, नाउ इट विल बी अ फेयर जस्टिस विद द पुअर मैन। उन्होंने बोला, थैंक यू राजा, अब ये फेयर जस्टिस होगा पुअर मैन के साथ। Okay, so we have completed this drama with the 5 scenes. I hope you all have get understood. So students, we have completed this chapter reading and explanation, and for the notebook work we will do in our further classes. Thank you so much and have a great day. Hello, good morning students. This is your assistant teacher from Shivaji Group of Institutions. I welcome you all in the online classes. So students, before start today's class, first we just recall what we have done in our previous classes. So students, as our quarterly exams are finished and we have completed the course of first term exam, telling that we have completed 7 chapters of SST. So today we will start the course of second term exam. So students, take out your SST book. Open page number 37, chapter 8. So today we will read this chapter. Okay, the name of the chapter is My Beautiful India. So our country India is a part of Asia and is one of the most beautiful countries in the world. It is the 7th largest and the 2nd most populated country in the world. More than 120 crore people live here. So हमारी जो country India है, our country India is a part of a continent which is Asia. Okay, we live in Asian continent. So our country India is 7th largest country in the world in area and 2nd largest country in the world in population, because on number 1 there is China which has the most population. Okay, means हमारी जो country India है वो 7th नंबर पर आती है पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज, और 2nd लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में, और नंबर 1 पे चाइना कंट्री आफ्टर चाइना। एंड हमारी कंट्री इंडिया में 120 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन। India has many landforms. We have mountains, plains, plateaus, deserts and islands. Let us study about them. So our country India has different types
about the various landforms found in the India. Okay, so the first one is the Himalayan mountain range. So the first one is mountains. Okay, now we will read about this landform. Mountains are the portions of the earth that have a steep slope. The top of a mountain is called a peak. A chain of mountains forms a range all along the north of a country like the Himalayan mountain ranges. These ranges have some of the highest peaks in the world. So mountain हमारी अर्थ का वो लैंडफॉर्म है जिसकी जो स्लोप्स होती है वो बहुत पॉइंटेड होती है, शार्प होती है और स्टीप होती है. और हमारी कंट्री इंडिया के जो नॉर्थ का पोर्शन है, डायरेक्शन है, वहां पर एक माउंटेन रेंज है. सो जब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ आते हैं तो एक चेन बिल्ड करते हैं, उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं. सो हमारी कंट्री नॉर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में माउंटेन रेंज से हम हिमालयस माउंटेन रेंज कहते हैं. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स इन माउंटेन रेंज में हैं. एंड द हिमालयन माउंटेन रेंज हैव 3 रेंजेस. द फर्स्ट वन इज द हिमालय, द ग्रेटर हिमालयस. The second one is the Himachal, the middle Himalayas, and the third one is the Shimala or outer Himalayas. Okay, and in this Mount Everest, इसी जो माउंटेन रेंजेस है, इसमें जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, जो कि नेपाल में सिचुएटेड है. और इसकी जो माउंटेन रेंज है हिमालय की, ये पूरे साल बर्फ से ढकी होती हैं. The mountain region is extremely cold. Many of the big rivers like Ganga, Yamuna and Brahmaputra originate from the Himalayas. The melting snow of the mountain keep these rivers fed through the hot and dry summer season. So, how a river originate? A river originate from a glacier. Okay, when the big ice sheets comes into a warmer region, they started melting and then a river originates. So means जो बहुत बड़े-बड़े ग्लेशियर होते हैं, आइस शीट होते हैं, जब वो वार्मर रीजन्स में जाते हैं तो वो मेल्ट करना मीन्स पिघलना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो इससे जो वाटर निकलता है उससे ही रिवर बनती है. जो हमारी जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से ही निकलती हैं. एंड गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर. दिस इज ऑल अबाउट द माउंटेन्स. और जब ये जो ग्लेशियर पिघलता रहता है, इससे जो वाटर निकलता रहता है, इसी से ये नदियां पूरे साल वाटर से भरी रहती हैं. सो नाउ दिस इज अबाउट माउंटेन. नाउ वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट लैंडफॉर्म व्हिच इज प्लेन्स, which means मैदान. ओके, सो plains are vast expanses of flat or gently rolling land to the south of the Himalayas like the Great Plains of India. The rivers such as Ganga and Yamuna flow through these plains. These rivers have made the land of these areas green and fertile. These are narrow strips of flat land along the eastern and western coasts of India. So, जो प्लेन्स होते हैं ये बहुत बड़ा वास्ट एक्सपेंस होता है, जगह होती है. ठीक है, और इसकी जो लैंड होती है वो फ्लैट होती है. ठीक है, अनइवन नहीं होती है. और हमारे जो हिमालय माउंटेन्स जो हैं उसके साउथ डायरेक्शन में प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया मीन्स यहाँ पर इंडिया के जो प्लेन्स है, मैदान है, वो हिमालय के साउथ डायरेक्शन में है. और कुछ रिवर्स लाइक गंगा, यमुना इसी रिवर से, इसी प्लेन से होकर गुजरती हैं. एंड और ये जो रिवर्स है ये यहाँ से फ्लो करती है, बहती है, तो ये अपने साथ कुछ रिवर डिपॉजिट्स लाती हैं जो इन प्लेन्स को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है. ओके, these plains meet at Kanyakumari. The rivers Narmada, Mahanadi, Tapi, Godavari, Kaveri and Krishna flow these plains and form deltas along the eastern coastal plain before the Bay of Bengal. So our country India has a peninsula on its south direction. ठीक है, so there is a Bay of Bengal on the east side, Arabian Sea on the west side and the Indian Ocean on the south. So ये कुछ rivers हैं like नर्मदा, महानदी, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इसी प्लेन से होकर गुजरती हैं. और इनमें से कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो डेल्टा बनाती है. डेल्टा वो होता है जैसे जो रिवर अपने साथ जो रिवर डिपॉजिट लाती है, तो वो जब वहाँ पे किसी भी रिवर के मुहाने पे जो मिट्टी छोड़ती है, उस मिट्टी को जो फर्टाइल जो सॉइल होती है उसको हम डेल्टा कहते हैं. ट्रायंगुलर शेप लैंड
और इनमें से वो कौन कौन सी रिवर है? इनमें से महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा, ये सब सारी रिवर्स जो हैं ये प्लेन से होकर गुजरती है और ये कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक डेल्टा बनाती है और इनमें से 2 रिवर्स ऐसी हैं जो है नर्मदा और तापी। ये 2 रिवर अरेबियन सी में गिरती हैं, वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो वहां गिरती है और ये 2 रिवर्स ऐसी जो डेल्टा नहीं बनाती। सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट नर्मदा एंड तापी आर द रिवर्स व्हिच flows in west direction and fall into Arabian Sea, and they don't build any delta. Okay, this is all about the plains. Now we will read about the plateaus. This is about a plateau. It means patha. Okay, so the southern part of India is a peninsula. A peninsula is a piece of land surrounded by large water bodies. On its 3 sides, the Indian peninsula has the Bay of Bengal in the east, the Arabian Sea in the west, and Indian Ocean in the south. So I am not making the whole map of India. I am just explaining the lower part or south direction of. Okay, so this is the south part of our country, India. Okay, in the map you can see this is the land which you can see. So this is the south direction. Okay, because our map has 4 sides. The top of the part is north direction, the lower part is, the bottom of the part is south direction, and toward your right is your east direction and toward your left is west direction. So India का जो country, India का जो south का part है ये south direction है आपकी, ठीक है। सो ये पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्यों है? ये हमारा जो आइलैंड है ये है श्रीलंका। श्रीलंका कंट्री है हमारी, ठीक है। और ये साउथ का पार्ट है। सो इसको हम पेनिनसुला क्यों कहते हैं? पेनिनसुला वो लैंड होता है जो वाटर से घिरा होता है 3 साइड से। सो हमारी जो कंट्री इंडिया है वो 3 साइड से वाटर से घिरी है। ईस्ट डायरेक्शन में है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, वेस्ट डायरेक्शन में है यहाँ पे अरेबियन सी, एंड श्रीलंका और मालदीव के बीच में यहाँ पे जो है इंडियन ओशियन। So you can see our country India is surrounded by water from 3 sides. In the south, Indian Ocean; in the east, Bay of Bengal; and in the west, Arabian Sea. इसीलिए हमारी कंट्री इंडिया को का साउथ का जो पार्ट है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। ओके, दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द साउदर्न प्लेटो और डेक्कन प्लेटो। अ प्लेटो इज अ फ्लैट टॉप surface that is raised above the surrounding land. This Deccan Plateau region has many rivers like Krishna, Godavari, Kaveri and Mahanadi. So ये जो साउथ का ही पार्ट है हमारी कंट्री इंडिया को, इसको हम डेक्कन प्लेटो और साउदर्न प्लेटो कहते हैं। प्लेटो एक ऐसा लैंडफॉर्म होता है जो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग का जो एरिया होता है उससे वो इवन नहीं होता, वो ऊंचा नीचा होता है कहीं पे, इसलिए थोड़ा ऊंचा होता है। इसको हम प्लेटो कहते हैं। और इस रीजन में बहुत सारी रिवर्स हमारी मिलती है यहाँ पे, क्योंकि इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और इंडियन ओशियन है। तो कुछ रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बे ऑफ बंगाल में मिलती है और नर्मदा एंड तापी 2 रिवर्स जो है वो अरेबियन सी में, जब वो हिमालय से निकलती है तो वो इस अरेबियन सी में मिलती है। इसलिए यहाँ पर बहुत सी रिवर्स हैं और these rivers depend on rain. This region has a moderate climate that is neither too hot nor too cold. This region is rich in minerals. और इस रीजन का जो क्लाइमेट है वो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। और प्लेटो रीजन जो है वहां पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं। ओके, I hope that you have explained what is a peninsula.
the desert region is not thickly populated. So जो यहाँ का जो डेजर्ट रीजन होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि समर सीजन में भी गर्म होता है लेकिन विंटर सीजन में बहुत कोल्ड होता है। सो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है ना उसमें, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल तो बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होती है। तो समर सीजन में जितना ज्यादा गर्म और सूखा होता है, विंटर सीजन में उतना ही ठंडा होता है। और जो डेजर्ट रीजन होते हैं यहाँ ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड नहीं होती, यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, क्योंकि डेजर्ट में वाटर की शॉर्टेज होती है और यहाँ का जो सैंड स्टॉर्म, यहाँ का जो वेदर है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, इसलिए यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलती है। Camel is called the sheep of the desert as it is the most common animal found here for transport. Vegetations of these areas include kekar and bamboo. So, in deserts, the major means of transport is an animal which is camel. क्योंकि यहाँ पर जो ये प्लेन होती है इसमें सारे एनिमल्स नहीं चल सकते, सिर्फ कैमल ही ऐसा है जिसमें यहाँ पर यूज करते हैं मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इसीलिए कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट मीन्स डेजर्ट का शिप कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, सो यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी सैंडी, सो इसलिए यहाँ पर सिर्फ कुछ ही वेजिटेशन मिलती है, जिसमें इंक्लूड्स है कैक्टर, केकार और बबूल। दीज आर द मेन vegetation found in the desert. Okay, this is all about deserts. Now I will read about islands. Okay, so an island is a piece of land surrounded by water on all sides. In the Bay of Bengal, there is a group of islands called the Andaman and Nicobar Island, and in the Arabian Sea there is another group of islands called the Lakshadweep Island. So island क्या है? Suppose ये प्लेस है, ठीक है, लैंड है और इसके आसपास सब में पूरे में वाटर है. So a land which is surrounded by water from all sides is called island. Okay, and this is water. जो लैंड वाटर से सराउंड होता है, घिरा होता है चारों तरफ से, उसे हम आइलैंड कहते हैं. और I've already explained about the two seas which is Bay of Bengal and Arabian Sea. So जो हमारी जो साउथ पार्ट में जो Bay of Bengal वेस्ट डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में है, उसमें आइलैंड का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. And we had read about in our previous chapter about it that Andaman and Nicobar Island is a union territory. Okay, so ये जो आइलैंड ग्रुप जो बे ऑफ बंगाल में मिलता है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. एंड इन द अरेबियन सी देयर इज अनदर आइलैंड ग्रुप व्हिच इज लक्षद्वीप. सो लक्षद्वीप इज आल्सो अ यूनियन टेरिटरी. You have to remember both the points. Okay, so दो आइलैंड के बारे में पढ़ा हमने. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में है. जो आइलैंड ग्रुप है उसे अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं और जो अरेबियन सी में आइलैंड ग्रुप है उसे लक्षद्वीप आइलैंड कहते हैं. This is all about islands. Okay, now we will read about the climate of India. So the climate of India varies from one place to another. The northern mountains have cold climate almost throughout the year. In the northern plains the summers are hot and the winters are cold. The coastal areas have moderate climate. It is neither too hot nor too cold. So हमारी जो कंट्री इंडिया है उसका जो क्लाइमेट है वो सेम नहीं हर जगह, वो चेंज है, हर जगह अलग अलग तरह का है. जैसे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं तो वहां पर हिमालय पर्वत है, सो इसलिए वहां वो साथ बर्फ से ढके होते हैं, इसलिए उनका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में है. सो इक्वेटर से दूर है, सनराइज कम पड़ती है वहां पे, इसलिए वो कोल्ड रहता है पूरे साल. और जो प्लेन्स हैं वो उनका जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडा है. समर में वो गर्म है तो विंटर में वो ठंडा है. और जो कोस्टल प्लेन्स है वहां का जो क्लाइमेट है वो भी मॉडरेट है क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो ना बहुत ज्यादा ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि वहां पर जो सी से हवाएं, समुद्री हवाएं चलती हैं, मानसून माइंड्स चलती है, उसकी वजह से वो दिन में तो वहां पर ह्यूमिडिटी होती है बट रात होते होते ठंडा हो जाता है, इसलिए वहां क्लाइमेट ना ज्यादा हॉट है ना ज्यादा कोल्ड है.
The rainfall occurs mostly during the summer season. All the places do not get the same amount of rainfall. और जो rainfall होती है, जो बारिश होती है, वो हर places में mostly summer के सीजन में होती है, लेकिन कुछ parts ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा rainfall नहीं होती है, like desert. Okay. So students, now this chapter is finished. I hope that you have understood all the landforms which I have explained here. So students, today we will teach you here. We will do the book exercise of this chapter in our next lecture. And today's homework is, note down your today's homework. Students, your today's homework is you have to read chapter 8, My Beautiful India, which I explained.